I think there's a bit of a difference in being a politician and a cricketer, but the emotions are the same. Because as a cricketer, obviously, you go through a lot of lows and highs, you go through a lot of satisfying days, you go through a lot of frustrating days as well. It's exactly the same with me in politics as well. I have gone through my good days in politics, I've gone through my bad days in politics, and I've gone through my frustrating and probably the most satisfying days as well. It will be far more satisfying than when I was a cricketer, because the thing is, when I see Ghazipur landfill coming down, it is far more satisfactory than winning a World Cup, to be honest, because that is something which impacts a lot of lives in East Delhi and probably in Delhi as well. And there are frustrating days when you know that you want to help someone, but you still can't because you go through a lot of red tapeism, which I personally feel should change. Because people like me, who comes from a different profession, especially cricket, where everything is happens so quickly, and when you come into politics, you need to be much more patient, which I never was as a human being. I was very impatient when I was growing up, even till now. I want things to happen very quickly. I want things to happen every day. But in politics, that is one thing which I need to change as a person. And probably not being a politician, sometimes what happens is कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो इतना डिले होता है प्रोसेस, that it frustrates the hell out of you at times. For example, permissions and all that stuff. Because जब मैं politics में आया था, I thought that I could change everything in East Delhi. There was so much to change and so much to do in East Delhi. I thought that I'll change the entire thing, but slowly in last 3 years I realized that everything takes its time. So that is something which I need to be careful of, because I can sometimes actually cross the line as well. So, but again, I think those are the frustrating days, those are the frustrating moments that has happened in 3 years of my political career. But there are some very good moments that has happened in my political career as well. Whether it is Ghazipur landfill, whether it is about Yamuna Sports Complex, where we were able to develop Yamuna Sports Complex completely. You guys should come and see. Whether it is about opening 3 or 5 community kitchens where we serve 5,000 people every day at 1 rupee. And that is something which is very satisfying. And now we've opened a library, and all these kitchen in this library, जो ढलाव घर था जहाँ पर एक टाइम पे कूड़ा गिरता था, we've converted that. And without any permission, I'll be very honest with you, I've always been very honest, we haven't taken a single permission from anyone. And if tomorrow the existing party in Delhi wants to probably demolish it, they have all the right to demolish. So sometimes when people used to tell me कि यार आप बिना permission लेके आपने ये ढलाव घर को convert कर दिया है community kitchens में और library में, I said we are doing a good job. Let other people do what they want to. बिकॉज अगर परमिशन लेने जाते तो शायद अभी तक मैं सिर्फ परमिशन ही ले रहा होता और वो परमिशन ना मिलती, शायद वो 5,000 लोग खाना भी ना खाते, शायद वो लाइब्रेरी भी ना बनती. यू पीपल शुड कम एंड सी व्हाट वी क्रिएटेड, स्पेशली द लाइब्रेरी वन. एंड इट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट लाइब्रेरी. आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, दैट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया. एंड दैट ऑल्सो कन्वर्टेड दैट इन वो जो ढलाव घर है दैट into a library where it has the capacity of 10,000 books. It will be centrally air conditioned, it has computers, Wi-Fi, everything. So that is something which is very very satisfying. But there are sometimes when I've crossed the line as well. See, पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँ that I'm not extremely rich. Absolutely, that's false. Yes, I come from a reasonably decent background. I'm not lying from that. But let me be very honest that whatever I earn from my commentary goes straight to the foundation. I do not take a single penny back home, and that is the only reason why I commentate. That is the only reason why I work from a point of view where I get involved in cricket. That is exactly because कल अगर आपको लाइब्रेरी बनानी थी तो इट हैड कॉस्ट मी अराउंड 50 to 60 lakhs. उसको कन्वर्ट करने में फ्री में नहीं बनती. अगर आज आपको 5 किचन आप चला रहे हो विच कॉस्ट 5 lakhs a month, 1 kitchen, so 25 lakhs a month I have to spend from my own pocket, which is 2.75 CR a year. So I get whatever money I earn, I put it back in the foundation, and that is how it is helping. And there is nothing shame when you're doing it for a cause. People can say whatever they want to. I don't care about it. When I see those 5,000 people getting a meal every day, that is more satisfying than people trolling me or saying X, Y, Z. It has never bothered me earlier when I was playing. It doesn't bother me now. It will neither bother me in future as well. और जहाँ तक आपने बात करी, एमसीडी के हॉस्पिटल्स बेटर होने की ज़रूरत है, स्कूल्स को बेटर करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को बेटर करने की ज़रूरत है. और चाहे वो बीजेपी अगर हमारे अंडर एमसीडी है, वी विल हैव टू वर्क दैट आउट. क्योंकि अल्टीमेटली मैं हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार के स्कूल देखो या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स देखो. हमारी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम 15 साल से एमसीडी में, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम दिल्ली की जनता को जितना अच्छी चीज़ें दे सकें, सुविधाएं दे सकें. वी शुड डू दैट. फर्स्ट प्रॉब्ली टू change this narrative that MCD doesn't do anything. This has been created by Aam Aadmi Party that everything that happens in Delhi happens because MCD is not willing to do that. MCD genuinely has worked quite a lot. चाहे आप
वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करो, बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज इशू इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी. वेस्ट सेग्रीगेशन दैट हैज़ बिन प्राइवेटाइज्ड, दैट वाज डन बाय एमसीडी. चाहे आप गाज़ीपुर की बात करो, गाज़ीपुर में भी एमसीडी की इन्वॉल्वमेंट है, अब एलजी की इन्वॉल्वमेंट अब आई है. Gazipur landfill, you can go, it has come down 40 to 50 feet. I'm not going to lie on that, which is a huge thing. बाकी सारे landfills भी हो गए अगर आप देखें. MCD ने machines भी खरीदी है. Yes, we still have to do quite a lot. I'm not saying that we've done everything right in last 15 years. Hospital needs to get better, जैसे मैंने बोला. Schools needs to get better. But अगर आप नए MCD के schools जाके देखो, they are much better. They are much better. चाहे आप परपरगंज में जाके देखिए, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी जगह जाके देखिए, what I have seen, it is much better. But again, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी will be a huge challenge. और ऐसा नहीं है कि आसान रहने वाला है इलेक्शन. See, the first thing we need to do is that probably we need to come out in a better way and tell people that what good has been done, what good has been done by MCD, which is very important. Unfortunately, what happens in Delhi is that we are not able to create that narrative for whatever reasons. I'm not going to get into that detail, that why we are not able to create that narrative, especially in Delhi, that what good has been done by the MPs, all the 7 MPs and the MCD. Because everything पिछले 3 साल से यही हमारे को बोला जाता है, ना MPs कुछ करते हैं ना MCD कुछ करती है. And the reasons you guys know much better than what I know, that whether it is the amount of funding that goes to media, the amount of advertisement budget there is, which probably MCD doesn't have it and MP doesn't have it. So जब तक हम ज़मीन पे जाके लोगों को ये बताएंगे नहीं, that will always remain a challenge. And this after 3 months it is going to be a huge challenge for us. ऐसा नहीं है कि MCD के इलेक्शंस कोई आसान रहने वाले हैं. And I accept that. अगर कोई यहाँ पर आके आपको ये बोले कि जी no, we are in a very strong position, I don't think so. We are in a tough situation, but we should come out and open and showcase our work to the people. And probably only way we can do that is when we go on the ground and probably tell people what has happened. We have to touch people, and that is the only way we can probably try and create that narrative. See, this is a very individual thing. From an individual's point of view, what they want to do, whether they want to endorse a certain brand, whether they want to endorse a certain product, which is very individual. I personally do not believe in all that. See, I was always against people endorsing alcohol, all this tobacco, and even for that matter, even this. I don't like that because it is a collective responsibility that what should be promoted in India and what should not be promoted in India, especially from the youngsters' point of view. So, have you been approached by any of these companies? Betting? Yeah. Never. I think Dinesh was once, and we were very clear. I don't even remember what company, and we were very clear that we're not going to endorse any betting site, or for that matter, even fantasy. Yes, I do. Fantasy, I do endorse. But fantasy, I was also very clear that we had this apprehension at one point of time that whether we should or not. But I think fantasy, if you compare fantasy to betting, probably it's little similar, but not probably exactly the same. So because the fantasy, what I endorse, when I spoke to the promoter, when I spoke to the owner, I said that, do you pay back in cash? He said that no, we don't pay back in cash. There are only gifts involved. Gifts in a way that, okay, the hampers and all that stuff. So we were very clear, but the thing is, my fantasy contract has expired, which I had endorsed for 1 year. But in 1 year, I can assure you this, that it is not कि आपने पैसे लगाए और आपको पैसे वापस आपके अकाउंट में आए. That is dangerous. That is something which is kind of betting. So we all need to be very clear on that front. We need to be very careful on that front. See, I think it has to come from the top. Either we should ban this completely in India. It can't be state wise कि जी आप एक स्टेट में आपने बेटिंग बंद कर दी, बेटिंग साइट्स बंद कर दी, फैंटेसीज बंद कर दी, बाकी स्टेट्स में चल रही है. इट हैज़ टू बी नेशनल. या तो आप बिल्कुल बंद करें, एंड नो वन शुड बी अलाउड टू एंडोर्स दैट. इट इज़ वेरी क्लियर. बट ये नहीं हो सकता कि यार आप कुछ अगर BCCI कल को अगर BCCI प्रेजिडेंट इज़ डूइंग इट, एंड देन यू कांट एक्सपेक्ट अदर प्लेयर्स नॉट टू डू इट. सो इफ ही stops that and he says that no one should be allowed to do it, I think everyone should follow that. But अगर आज आप IPL में देखें, most of the endorsements and most of the sponsorships are from this fantasy, Dream 11 for that matter. या बाकी अगर आप देखो, I don't even remember कि कितनी सारी fantasy sites होंगी. मतलब you can, it's countless. So that has to be a very collective decision from the BCCI कि whether we should allow this to happen or whether we should not allow this to happen. Dream 11 तो I think IPL का sponsor भी है.
Good that you don't know the names about the next big star, because the next big star should be Indian cricket. Don't create a monster. Don't create a monster in that dressing room. The only monster in that dressing room should be Indian cricket, not an individual. And good you asked me this question. I was the only one during that commentary stint when I said that when Virat Kohli got 100, and there was this young guy comes from a small town of Meerut who also managed to get 5 wickets. No one even bothered to speak about him, and which is so unfortunate. Who bowled 4 overs for 4 runs and 5 wickets, and I don't think so anyone going forward or anyone knows about that. But Virat Kohli scores 100, and it's everywhere. There are celebrations in this country. And who's created that? 2 things. Just 2 things. Social media followers, which is probably the fakest thing that goes around in this country, because you are judged by your social media. How much followers do you have? And that is what creates a brand. And second, the media and the broadcasters. If you keep talking about one person day in, day out, it eventually becomes a brand. That is how it was in 83. Why do we go from MS? It has started from 83. When India won the first World Cup, it was all about Kapil Dev. When we won in 2007, it was MS Dhoni. When we won in 2011, it was MS Dhoni. So who created that? None of the players did. Neither did BCCI. You guys, the news channels, the broadcasters. Have we ever spoken about Indian cricket? Have we ever spoken that Indian cricket needs to flourish? No 1, 2 or 3 people are the stakeholders of Indian cricket. They don't rule Indian cricket. They should not be ruling Indian cricket. Indian cricket should be ruled by 15 people sitting in that dressing room. Everyone has a contribution to make. And that was something which I was trying to do when I was with KKR, because that is all I could have done when I was leading them for 7 years. That start appreciating small contributions. The big contributions, unfortunately, only makes headlines. It's those small contributions which we never bother about. Tell me how many people have spoken about Bhuvneshwar Kumar? No one. It was the same game, same opposition, everything is the same. आपने उसको 5 मिनट के इंटरव्यू के लिए बुला लिया, पोस्ट मैच, इट्स डन एंड डस्टेड. हमने उसको 5 मिनट के इंटरव्यू के लिए बुलाया, चलाया कितना ये तो बताओ. जस्ट बिकॉज ही इज नॉट अ ब्रांड. उसने भी उतनी मेहनत करी होगी, उसने भी उतना ही पसीना बहाया होगा, उसकी भी फैमिली को, वो भी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आया होगा. ही ऑल्सो डिजर्व द सेम एप्रिसिएशन, सेम क्रेडिट, सेम एवरीथिंग. But because he's not sellable, or probably you don't get the numbers or the TRP, everything can't be about numbers, everything can't be TRP कि मेरे numbers कितने आ रहे हैं. मार्केटिंग टीम अगर कहीं पर बैठी है ऊपर और अगर वो किसी और को बेच नहीं पा रही, that is their problem. They should go out and probably work harder. क्योंकि कमरे में बैठ के अगर कोई सेलेबल है अगर, तो उसको तो तुम बेचते रहो, दिन भर दिखाते रहो, TRP नंबर्स लेके आओ. मेहनत तो उसमें लगती है ना कि किसी को ब्रांड बनाने में, या किसी को जिसने जो छोटे टाउन से आया उसको बेचने में, या उससे नंबर्स लेके आने में. सो लेट्स नॉट ओनली ब्लेम 1 or 2. इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 1983, एंड द वे फॉरवर्ड इज इट विल कंटिन्यू टू गो अनलेस पीपल विल स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस. पीपल लाइक यू, पीपल लाइक इंडियन एक्सप्रेस, विच हैज़ बीन सो ऑनेस्ट. आई हैव नॉट गॉन टू एनी अदर, मैं किसी टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं नहीं गया. आई हैव कम हियर बिकॉज आई फील दैट यू गाइज कैन मेक अ डिफरेंस, एंड यू गाइज शुड मेक अ डिफरेंस. Start contributing, start giving appreciation to small contributions, especially when it comes to sports, because that is what Indian cricket needs. We need to move out of that shadow of 2007 and 11. It's done and dusted. Why keep talking about आज भी 83, आज भी 2007, आज भी 2011? 11 साल हो गए हैं उसको. That's history. Start talking about this 2022 and 2023. Can we win? And we should. वही images. I remember one thing, and I'm not going to name that. In 2011, it's a very valid point. 2011, semi-final match से पहले, I will not name, 2 or 3 senior players came to me and said, Gautam, we need to win this tournament because 1983 वालों ने उनको इतना दिखा चुके, we need to get उनको हटाना, we have to finish their thing off. I said, मैं यहाँ पर किसी को ख़त्म करने नहीं आया, किसी की लाइन छोटी करने नहीं आया हूँ. मैं ये जीतना चाहता हूँ बिकॉज हम अपनी लाइन लंबी करें. That is not my motivation कि 1983 अभी तक चलता आ रहा है. That is not what I want to do. अपनी लाइन लंबी करो ना यार, दूसरे की लाइन क्यों छोटी करनी है. उनको अगर वो 1983 से 2011 तक अगर उनको मीडिया काम दे रही है तो दैट इज़ मीडियाज़ जॉब, दैट इज़ मीडियाज़ प्रॉब्लम, नॉट योर्स एंड नॉट माइन. हमने जीतना है वर्ल्ड कप बिकॉज वी वांट दिस कंट्री टू बी हैप्पी, नॉट बिकॉज कि 1983 इज़ माई मोटिवेशन. सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू चेंज इन फ्यूचर.
मेरा नाम मत लेना ऑनेस्टली ना। और ना मेरे को ब्रांड बनने का कोई शौक है। दिल्ली को सिर्फ एक चेहरा चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और वो चेहरे का नाम है ऑनेस्टी। कोई इंडिविजुअल कोई भी हो, चाहे यू कुड बी, अगर आप ऑनेस्ट हो यू कुड बी द फेस। सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई शुड बी द फेस, कोई इंडिविजुअल नहीं। हाँ, बिकॉज इंडियन पॉलिटिक्स हैव gone to that level where it has become face versus face. When I was growing up, it was never like that, because मुझे याद है कि पहले सिर्फ दो सिंबल्स हुआ करते थे कि या तो कांग्रेस हाथ या कमल, लेकिन अब इट हैज़ गॉन टू दैट लेवल वेयर इट इज़ ओनली अबाउट फेस वर्सेस फेस। तो बीजेपी को क्योंकि अगर फेस की ज़रूरत नहीं होती तो शायद 2 बार से हम हार ना रहे होते, विच इज़ द ट्रुथ एंड वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। फेस आपको देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, और फेस वो कोई भी हो, लेकिन ऑनेस्टी, जिसमें ऑनेस्टी हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें क्रिटिसिज्म फेस करने की एबिलिटी हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म फेस करने की एबिलिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 5 साल में, अगर कल 2025 में बीजेपी आ जाती है दिल्ली में, तो 5 साल में आप पूरी दिल्ली को बदल दोगे। और जो ये झूठ ना बोले कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू, विच दिल्ली कैन नेवर बी लाइक दैट। इट इज़ इम्पॉसिबल, झूठ है कोई भी बोले। अगर मैं भी कभी बोलूँगा ना हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे, मैं सबसे बड़ा झूठ हूँ। दिल्ली को दिल्ली बना सके, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट, जब मैं बड़ा हो रहा था दिल्ली में क्या था, मैं ग्राउंड का पानी पीता था, आपने भी पिया होगा पाइप से, ठीक है। बच्चे फीमेल यूज टू फील सेफ, ऐसा कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चे बाहर खेल सकते थे, टैप वाटर पीते थे। ये बेसिक चीज़ें चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इसलिए होना दिल्ली में ज़रूरी है बिकॉज दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरे देश से लोगों के, जब पूरे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दिल्ली की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब तक आप दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं करेंगे तब तक दिल्ली, अदरवाइज दिल्ली विल कोलैप्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मैं डीटीसी बस में स्कूल जाता था, ठीक है, मैंने डीटीसी बस में मैं रीगल जाके मूवी भी देखी नाना नानी के साथ। आज अगर आप डीटीसी बस में नहीं जा सकते, जो डीटीसी बसेस की हालत है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम नीड्स टू गेट बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू गेट बेटर, health infrastructure needs to get better. You know, I was shocked and I'm still shocked. I cannot accept this fact कि डेल्टा वेव के बाद भी not even a single hospital has been built in Delhi. 35 साल के बच्चे, they've lost their life. My very close friend, my sister's best friend, her husband, 2 साल की बेटी है, 6 महीने का बेटा है, he lost his life and a multi-millionaire, कहीं जगह नहीं मिली फरीदाबाद के किसी नर्सिंग होम में, उसके बाद भी नहीं सीखे हम, एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया बेड नहीं ऐड किया। वेयर आर वी गोइंग एज, टेल मी, दिस इज द काइंड ऑफ दिल्ली यू वांट? ये करो ना, आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे करे जा रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा लगाए जा रहे हो। आई थिंक देयर शुड बी अ रूल गोइंग फॉरवर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स कि जिसने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना या तो पार्टी फंड से लगाओ, नहीं तो यू शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। मैं सुबह से लेकर आप बात कर रहे हो ना कि मैं काम करता हूँ, 12 घंटे स्टार स्पोर्ट्स काम कराती है और मैं 45% टैक्स देता हूँ। मैं 45% टैक्स देने के लिए रेडी हूँ, हर साल दूंगा, जब तक काम करूँगा दूंगा। लेकिन अगर वो 45% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे, एजुकेशन पे लगे, बेसिक बाकी चीज़ों पे लगे, आई एम हैप्पी टू डू दैट। लेकिन मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट या किसी का ब्रांड बनाने के लिए अपना टैक्स नहीं देना चाहता। दैट विल हर्ट मी एवरी डे। देश में आधे स्टेट्स में आपकी सरकार है, सेंटर में इट शुड चेंज। आप, आई एम सेइंग ना कि ये रूल बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट आम आदमी पार्टी, आई एम सेइंग इट, देश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आए कि जिसने भी एडवर्टाइजमेंट पे अपने खर्चा करना है, ऐड देने हैं, इट शुड कम थ्रू अ पार्टी फंड। टैक्स पेयर्स मनी शुड ओनली गो फॉर द बेटरमेंट of the state or for the betterment of this country. The period. That's it. So coming to face matter, if party gives you responsibility, would you be ready to take it? See, when it happens, it happens. I'm ready to work for the people of Delhi. That is all I want to say, and this is not a diplomatic answer because I've never been diplomatic. When it happens, it happens. I don't think so it's going to happen because sometimes people who are so upfront and straightforward, it is difficult for people to digest. And honesty has its own price. But जिसको भी दे, जो भी बने, बी ऑनेस्ट, और अपने ऊपर खर्च मत करना, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च मत करना, लोगों पे खर्च करना, वही मैटर करता है। इतनी चीज़ें दिल्ली में करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें बेटर होने की ज़रूरत है। और आज अभी भी हम वही फ्रंट पेज ऐड, वही न्यूज़ चैनल्स पे ऐड, वही होर्डिंग्स पे ऐड। मूव ऑन फ्रॉम दैट। ये मेगालोमेनिया कल्चर नीड्स टू चेंज। द बिगर देन, larger than life needs to change. A public representative should be someone
शुड बी लाइक अ कॉमन मैन. उसी ने तो आपको जिताया है. हाँ, अगर आप राज्यसभा के एमपी हो, फेयर इनफ, बिकॉज आप राज्यसभा के एमपी ऑफ नॉमिनेटेड. लोकसभा के एमपी शुड बी लाइक अ कॉमन मैन. यार लोगों के बीच में जाके अगर आप उनकी मदद कर सकते हो, एंड ही शुड बी हम्बल एज वेल, which is very very important. No, I don't think so. We are on the back foot. Absolutely not. No, we are not, because whether it comes to the liquor policy, whether it comes to the education stuff, मतलब adding classrooms does not allow you to say that we've created new schools. मतलब कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जहाँ पर ये बोला जाए कि अगर ट्रेन में नए डब्बे लगा दिए तो हमने ट्रेन आज कर दी. कौन सी? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट टर्मिनोलॉजी कि अगर ट्रेन कोई पुरानी ट्रेन है उसमें अगर आपने एक और डब्बा ऐड कर दिया तो आप ये थोड़ा बोल सकते हो कि हमने 3 ट्रेन और नहीं बनाई हैं. आप बताइए, मतलब पिछले 7 साल में कितने नए स्कूल बनाए हैं, कितने. और लिकर पॉलिसी इज एन ओपन एंड शट केस. अगर कोई इतना सच्चा है जो ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, तो वाई क्रिएट सो मच ऑफ पैनिक? वाई सो मच ऑफ पैनिक बीन क्रिएटेड? आज अगर मेरे घर पे कोई एजेंसी आती है, चाहे वो CBI हो, कोई और ED हो, इनकम टैक्स हो, आई विल फेस इट, क्योंकि आपको पता आपने कुछ गलत किया नहीं है. कोई ऑनेस्ट आदमी के पास अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए, तो यू विल नॉट बी स्केर्ड. वाई शुड यू बी स्केर्ड? वाई शुड आई बी स्केर्ड? यू कैन सेंड एनीथिंग टू मी, विच एवर एजेंसी यू वांट. एक छोटी सी चीज़ हटाई है, द स्केलेटन्स हैव कम आउट. एंड द लिकर पॉलिसी, जब सेकेंड वेव थी कोविड की, द रियलिटी इज जब पूरा देश भुगत रहा था, दिल्ली भुगत रही थी, दे वर फॉर्मुलेटिंग दिस पॉलिसी, लिकर पॉलिसी. एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि जितने ब्लैक लिस्टेड लोग थे, they have got them on board so that they can get all the commissions. मतलब money, what kind of was that Manish Sisodia should be given Bharat Ratna? Come on, कि हमारे MLA इसको खरीदने की कोशिश करिए, ऑपरेशन लोटस. मतलब this kind of politics, do you buy into this kind of politics? कि do you, I'm genuinely asking you, do you guys buy into this kind of politics? I know you can't answer, but मतलब this is so childish. अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग हुई, आपको बुलाइए, प्लीज़ फेस इट. अगर आप सच्चे तो बिल्कुल साफ सुथरे बाहर आ जाएंगे. मनीष सिसोदिया इज़ द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड. न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ द प्रूफ. आई हैव मोर ट्रस्ट ऑन यू पीपल देन न्यूयॉर्क टाइम्स. एंड वाई शुड आई नॉट ट्रस्ट यू पीपल मोर देन न्यूयॉर्क टाइम्स? न्यूयॉर्क टाइम्स विल टेल अस कि यार दिल्ली में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ. यू पीपल शुड टेल अस ना. अगर हम गलत पूछ रहे हैं या गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, यू शुड एक्सपोज मी, यू शुड एक्सपोज BJP दिल्ली. डू दैट, यू हैव ऑल द राइट टू डू इट. अगर हमने कुछ गलत क्वेश्चनिंग करी है तो, एंड वी विल फेस इट. लेकिन अगर उन्होंने गलत किया तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ एक्सपोज देम. और एजुकेशन, आपको पता है कितने टीचर्स नहीं हैं स्कूल्स में, कितने प्रिंसिपल्स की शॉर्टेज है. मतलब ये कौन सा नैरेटिव है कि यार आप क्लासरूम ऐड कर रहे हो नए, और आप कह रहे हो हमने, कोई कह रहा है 500 नए स्कूल बनाए हैं, कोई कह रहा है हमने 150 नए स्कूल बनाए हैं. 150 नए स्कूल अगर दिल्ली में बने होते तो आपको नहीं दिखते, या मुझे नहीं दिखते, आपको नहीं दिखते. 150 नए स्कूल. आज आप पब्लिक स्कूल्स में जाके देखिए, हाउ दे आर सफरिंग, दे कैन नॉट सस्टेन. जो इन्होंने बोला है कि हम फीस नहीं है आपको बढ़ाने देंगे, हाउ विल दे सस्टेन? फिर अल्टीमेटली क्या होता है, आप डोनेशंस मांगते हो, फिर आप अंडर द टेबल डीलिंग्स करते हो. यही होगा ना अगर आप फीस नहीं बढ़ाने दोगे पब्लिक स्कूल्स को. दिस इज व्हाट विल हैपन. गेट डन विद दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स. दिल्ली इलेक्शंस में लास्ट टाइम, एंड आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट फ्रंट, एंड आई विल कंटिन्यू टू से दैट, जब महिलाओं के लिए फ्री बस राइड दी गई थी, दैट वाज ओनली वोट बैंक पॉलिटिक्स. अगर बच्चों के लिए दी जाती, आई वुड हैव एंडोर्स्ड इट. अगर छोटे बच्चों को ये बोला जाता कि आपको स्कूल जाना फ्री है, आपको किसी चीज़, आप DD बसेस यूज़ करिए, आपको स्कूल में कोई खर्चा नहीं होगा, आई वुड हैव एंडोर्स्ड दैट. और बात ये करते कि हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते. वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी. मतलब आज डिफेंस में है लेडीज़, और यहाँ पर हमारे को दिल्ली में उनको फ्री बस राइड देने की ज़रूरत पड़ रही है. यू ऑल आर वर्किंग. मतलब वुड यू वांट दैट? वेयर इज द सेल्फ रिस्पेक्ट? I think self-respect is more important. Delhi needs dignity. Delhi needs self-respect. That is what is more important. A good government is a government which takes care of everyone. I'm not against freebies. Absolutely not. Don't take me on that thing that I'm not against freebies. Freebies उसको मिलनी चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको नहीं जो अफोर्ड कर सकता है. इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ आपको. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. जो ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है, बड़े बड़े ऐड देखिए कि हम फ्री बिजली देते हैं दिल्ली में. 11.5 लाख घर पूरी बिजली का खर्चा उठाते हैं दिल्ली की.
20,000 करोड़ का बजट है, 16,000 करोड़ सिर्फ 11.5 लाख घरों से जाता है, और 4,000 करोड़ की जो सब्सिडी दी जाती है दिल्ली सरकार से, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मनी दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड और इनटू गिविंग सब्सिडी। किसका पैसा है ये? टैक्स पेयर का पैसा है। 11.5 लाख घर पूरी दिल्ली की का खर्चा उठाएं। मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, एक ही घर में लोग रहते हैं, एक का 20,000 बिल आता है, एक का 0 आता है। दिल्ली इलेक्शन से पहले ये बोला गया था कि हमारे को ऑर्डर है, BSCS ने ये बोला था हमारे को कि हमारे को ऑर्डर है कि आपको 50,000 लोगों के बिल फ्री करने हैं रैंडमली, किसी के भी उठाओ करो। This is the kind of politics we want in Delhi. Do you think Delhi can survive like this? Mark my words, in 10 years, if it stays like this, you will leave Delhi, I will leave Delhi, because there will be nothing to give to our next generation. Delhi will collapse. So we should stand up and start saying the right things and start doing the right things as well. कोई फ्री में, कुछ फ्री में नहीं आता, एक ही जेब से निकाला जाता है, एक ही जेब से दिया जाता है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ फ्री में मिलती है, वो है गुलामी, और कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। दैट इज़ द रियलिटी। और वो कोई भी सरकार दे, चाहे हमारी सरकार दे, चाहे आम आदमी पार्टी दे या कांग्रेस दे, आई एम एब्सोल्युटली नॉट गोना बाय दिस नैरेटिव कि मुफ्त में कुछ मिलता है, टैक्स पेयर के पैसे से ही मिलता है। दैट्स इट। That probably you'll get the answer only after the MCD elections. Our job is to probably keep exposing Aam Aadmi Party and the CM of Delhi till whatever level we can, and expose him from a point of view where he's made a blunder. अब ultimately if I can't get into someone's mind, अगर देखो, अगर मैं ज़मीन पे जाता हूँ तो people do say that yeah, you guys are doing the right thing, but ultimately everything boils down to whether people can buy that narrative, or that you will get to know after the MCD elections. And again, we have that issue, plus we have anti-incumbency as well to fight. So it is very difficult probably to answer that question, because for that liquor policy की जब बात आई थी, जब इन्होंने liquor shops दिल्ली में खोली थी, there were so many ladies, मतलब so many ladies from my constituency who used to come to me and say कि आप ये वाली liquor shop बंद करवाइए, हमारे घर के बच्चियाँ निकल नहीं पा रही, there are long queues in the evening, आप बंद कराइए। रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में खुली हुई है, मंदिर के साथ में खुली हुई है, स्कूल्स के साथ में खुली हुई है। अब अगर मैं उनकी तरफ से देखूँ तो ऐसे कि यार आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग, बट व्हेन आई सी कि जब एक इलेक्ट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारे को लगता है कि इट इज स्टिल टफ for whatever reasons, whether it's the freebie culture that is probably winning Delhi, but freebie culture will also collapse Delhi in future. That is what the unfortunate thing is. कि आप बताइए, आप पिछले 7 साल में, मुझे नहीं लगता, मैंने ये हर जगह बोला है कि आई थिंक शीला दीक्षित जी के टाइम बहुत काम हुआ था दिल्ली में। शी इज़ फ्रॉम कांग्रेस एंड आई एम नॉट गोना से कि वो कांग्रेस की थी तो आई हैव गॉट नो राइट टू अप्रिशिएट हर। जिसके अंडर काम हुआ उसके अंडर काम हुए, दैट इज़ द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी वांट। लेकिन 7 साल में कितने फ्लाईओवर्स खुले हैं, कितनी दिल्ली इतनी पुरानी कभी भी नहीं लगी। आई हैड ग्रोन अप इन Delhi, I was born in Delhi, I brought up in Delhi, did my schooling, college, everything from Delhi, but I don't think so in 7 years Delhi has ever looked that bad which it has looked in last 7 years, which is so unfortunate. मतलब आप इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करके आए थे, अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ा कि सिर्फ फ्री में आपने इलेक्ट्रिसिटी और पानी दे के आप जीत रहे हो। What is there for a middle class? What is there for an upper class? A good government is one which takes care of everyone. ये मैंने पहले भी बोला। तो जब तक हम ये बोलेंगे नहीं, और हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि we know that there are so many, the amount of money that is thrown, the amount of ads that is given. सुबह उठो, कोविड के टाइम सेकेंड वेव में जब मुझे लगता है इस देश के सारे पॉलिटिशियंस ने आर्ट देनी बंद कर दी थी, एवरी डे देयर वाज अरविंद केजरीवाल ऑन न्यूज़पेपर, एवरी सेकेंड ही वाज देयर ऑन न्यूज़ चैनल। और फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यार यू गाइज आर नॉट एबल टू क्रिएट अ नैरेटिव इन दिल्ली। आज कुछ बात हम करते हैं, हमारे MPs करते हैं, MLAs करते हैं या काउंसलर्स करते हैं, कितना छपता है और कहाँ छपता है? 4th पेज, 5th पेज, कभी 6th पेज, कभी इतना सा कॉलम। आई नो प्रॉब्ली उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए। एक बंदा 3-3 पेज में छपता है। मोहल्ला क्लिनिक इज़ वर्ल्ड क्लास। कितनी बार गए हो आप लोग मोहल्ला क्लिनिक? इज़ मोहल्ला क्लिनिक अ वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? यू गैस शुड आंसर दिस। अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना ही वर्ल्ड क्लास है तो कोविड में कहाँ गया मोहल्ला क्लिनिक? टेस्टिंग तक नहीं हो रही थी वहाँ पर। जाके देखिए लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में
जब मैं गया था मेरी मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर सकता हूँ, प्रॉब्ली आई थिंक दिल्ली में और ज़्यादा इट मस्ट बी वर्स। एक एक बेड पे 3-3 बच्चे सो रहे हैं। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। एक एक बेड पे 3-3, गो सी ऑन योर ओन। और ऐसे बच्चे को सोना चाहिए, ऐसे सुलाया हुआ है। दिस इज वॉट यू वॉन्ट इन डेली। और फिर आप कहते हो कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे 3 बच्चों को एक बेड पे, और तीनों की मदर कुर्सी लगा के उनके सामने ऐसे बैठी हुई हैं। और वहाँ की एमएस मुझे कहती है हमने पता नहीं कितने साल से ये बोला हुआ है कि हमारे को एक और फ्लोर चाहिए, अभी तक क्लियरेंस नहीं आई। कम ऑन गाइस, दिस इज Delhi, we all are the stakeholders of this country. Sir, but that is true for even central government hospital. Could be, absolutely. I'm saying it has to be a nationwide thing. Stop spending money on advertisement. Simple. Spend on health. अगर हम second variant के बाद भी नहीं सीखेंगे, I don't think so we will ever learn. Ever. उससे ज़्यादा खराब मैंने नहीं देखा in my 40 years of my life. बहुत pandemics आए, but nothing like that has, because ये तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अमाउंट ऑफ, मतलब मेरे को जितनी एडमिशन्स करवानी पड़ी थी, चाहे वो गंगाराम हो चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, क्रीमेशन ग्राउंड में लाइनें लगी हुई थी, देयर वाज वेटिंग क्रीमेशन ग्राउंड। यू डन दैट, आई एम श्योर यू फॉलोड दैट। इसके बाद तो वी नीड टू लर्न इट। एवरी पेनी शुड गो इन द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, एवरी पेनी। तुमने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है सोशल मीडिया पे करो, क्योंकि वो तो फ्री है, तुम्हारा अकाउंट है, जितना मर्जी करो। अब है ना वो ऑप्शन 1 अक्टूबर के बाद सब्सिडीज अगर किसी को अपनी छोड़नी है तब, अभी हुई है ना, 1 अक्टूबर के बाद से शुरू होगा वो। So you think ये सही है सर? देखिए मेरा पॉइंट ये है कि फ्री भी अगर उस आदमी के पास जाना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए ना। एम्प्लॉयमेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर नहीं पाते। आप ये जो नैरेटिव ये पूरे देश में सेट हो रहा है ना कि फ्री दो और इलेक्शन जीतो, यू नो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस थिंग। आज वी डोंट रियलाइज इट। सिर्फ एक बंदे को सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए, सीएम बनने के लिए सिर्फ आप मुफ्त में चीज़ें बांट रहे हो। क्या है मुफ्त में? कैसे कोई चीज़ मुफ्त में मिल सकती है किसी को? आप बताओ मुझे, कैसे कोई चीज़ मुफ्त में मिल सकती है? बिजली मुफ्त में मिल सकती है? टैक्स पेयर का ही तो पैसा जा रहा है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप पानी की हालत देख लीजिए, दिल्ली जल बोर्ड की हालत देख लीजिए, दे आर लिटरली बैंक करप्ट। आप जब मुफ्त में चीज़ें देना शुरू करते हैं तो बाकी चीज़ों पे आप सोचते भी नहीं। तभी तो आपके पास पैसा नहीं था, तभी तो आपने लिकर शॉप्स खोली, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है नया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने का, नई डीटीसी बसेस खरीदने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। आपके पास पैसा ही नहीं है, सब कुछ तो आपने मुफ्त में दे दिया। तो फिर आप लोग क्यों क्रिटिसाइज ये करते हो कि यार दिल्ली की रोड्स की हालत देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए, एजुकेशन सिस्टम की हालत देखिए, बसेस की हालत देखिए। कहाँ से लाओगे पैसा? 200 यूनिट आपने बिजली फ्री में दे दी। उनको एम्प्लॉयमेंट करवाइए, उनको जॉब्स दीजिए। पर आप भी तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना सर। आप स्टार से पैसे लेते हैं, 1 रुपए का कैंटीन चलाते हैं, सेम मॉडल है, बस वो लार्जर स्केल पे है। वो मैं अपनी जेब से करता हूँ ना, टैक्स पे आपकी जेब से, आपसे पैसे लेके तो किसी और को मुफ्त में नहीं दे रहा। अगर अपना एमपी लैड का खर्चा, अगर एमपी लैड का फंड मैं अगर फ्री में किसी को दे रहा हूँ या उसको अपनी फाउंडेशन प्रमोट कर रहा हूँ उससे, वो गलत है ना। अगर मेरे एमपी लैड का जो 5 करोड़ रुपए मुझे आता है वो आप ही का पैसा है, टैक्स पेयर का ही पैसा है ना, तो वो तो लोगों के वेलफेयर के लिए जाना चाहिए। उससे अगर मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, वो तो नहीं प्रमोट कर रहा। वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ किसी भी तरीके से डाइवर्ट करके, वो तो नहीं करता। काम इसलिए करता हूँ, टैक्स आपने मुफ्त में देना है ना, आपने अपने ऐड करने हैं, मुफ्त में देना है, आप अपने पार्टी फंड से करवाइए ना। जो टैक्स पेयर का पैसा है, मतलब 45% मैं पे करूं और ना मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ना मुझे हॉस्पिटल में बेड्स मिले, ना मुझे एजुकेशन में स्कूल्स में सीट मिले, ना मुझे बेटर क्वालिटी ऑफ एयर मिले, बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर मिले, और टैक्स मैं दिए जाऊँ किस चीज़ के लिए? ये बताइए ना। अगर आप मुफ्त देना है, आपने कुछ भी करना है, अपनी जेब से करिए यार। वेलफेयर स्कीम्स क्या होती है? वेलफेयर स्कीम्स का मतलब ये है ना कि सबके लिए, सबके वेलफेयर के लिए। आज मिडिल क्लास के लिए क्या है? आज अगर मिडिल क्लास, अगर आपको अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन करानी है, आप करा सकते हो आसानी से दिल्ली में। अप्रोच चाहिए होगी ना, कहाँ है स्कूल्स? और आप
ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में फ़र्क है वो बहुत कम है। यहाँ पर कितने लोग जब ये एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, कितने लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं? आप भेज सकते हो? इस रूम में कोई भेज सकता है? नहीं भेज सकता। अगर भेज सकते होते तो हमारे को इतनी ज़्यादा अप्रोचेस क्यों आती कि यहाँ पर एडमिशन करवा दीजिए, वहाँ पर एडमिशन करवा दीजिए। एजुकेशन सिस्टम बेटर करिए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स बेटर करिए। इतना अच्छा मतलब आप, मैंने पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट स्कूल में प्रैक्टिस करी है, अशोक विहार में, भारत नगर में। अब वहाँ का कैंपस जाके देखिए, किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेटर है वो। लेकिन अंदर क्लासरूम्स की हालत देखिए, शेड है वहाँ पर। मैं पिछले 4 साल से नहीं गया हूँ, जब से मैंने छोड़ी है। शेड थे उससे पहले। बेंचेस जाके देखिए, ब्लैक बोर्ड जाके देखिए। बच्चे आते हैं वहाँ पर सिर्फ मिड डे मील खाने। टीचर्स को एक बारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो उनको हटाया नहीं जाता। टीचर्स पढ़ाने नहीं आती। और अंदर ग्राउंड देखो, किसी प्राइवेट स्कूल में इतना बड़ा ग्राउंड नहीं होगा जो नए खुलें। उसके बावजूद भी दीज गाइज आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। एजुकेशन सिस्टम को कम करिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एजुकेशन जो गैप है, देन ओनली थिंग्स विल गेट बेटर। Personally, yes. Personally, I feel yes, and I know that it might just backfire. But अगर देना भी है तो सिर्फ उनको जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी देने से पहले उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट दीजिए जिससे वो सेल्फ सस्टेन हो सके। दिल्ली को ना सक्षम बनाइए। आप लाचार, मैंने आपको पहले भी बोला है, मुफ्त में सिर्फ गुलामी मिलती है, मुफ्त में सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है और कुछ नहीं। मुफ्त इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो आपका वोट बैंक बने। और अरविंद केजरीवाल के पास कोई मॉडल नहीं है वापस पावर में आने का एक्सेप्ट फ्रीबीज। ही कैन नॉट टॉक अबाउट एजुकेशन, ही कैन नॉट टॉक अबाउट हेल्थ, ही कैन नॉट टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, नो public transport, nothing, no clean water, nothing except this freebie, and which unfortunately we are not able to counter. This is the reality. That's why we are not in Delhi since last 23 years, and we will have to counter that. This is the reality. ये मुझसे बार बार पूछा गया था पिछले 3 साल में। ये सवाल आपने भी मुझसे बहुत बार पूछा है कि उसका क्या तोड़ है। और ये हमारे इंटरनल भी बहुत बात हुई है कि जब भी हम इलेक्शन हारते हैं कि फ्रीबीज का हमारे पास काउंटर नहीं है। तो ऐसे जब आपके पास फ्रीबीज का काउंटर नहीं, अगर आपको किसी ने एक चैलेंज थ्रो किया तो नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काउंटर इट। कैसे करते हैं, दैट वी नीड टू डू इट। विजन बताइए ना अपना, क्योंकि हम सिर्फ हमारे को अपना विजन, तभी मैंने बोला था सोशल मीडिया से क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। कुछ डेवलप करके, ज़मीन पे डेवलप करके, वो दिखा के हम अपना विजन क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। When do you have a hearty laugh about things that... My kids. Oh. Though I don't get to meet them very often in a way, because when they go to school I'm sleeping, when I come back home they're sleeping. So the weekends I love spending time with them. Probably that's because a lot of people might not believe this, that I'm an absolute teetotaler. Never tasted tea, never tasted coffee in my life. So my only probably stress buster is when I'm spending time with my kids. Dropping them to school at times, I make sure that at least twice a week I drop them to school in the morning, even if I get back late at night, because that's my only 45 minutes with them there, where they can share their heart out with that, what they do throughout the day, their friends, what they want to do for the weekend and all that stuff, and make sure that I take them for a holiday at least once a year. No, my friendship with Harbhajan Singh is great. In fact, we still crack a lot of jokes and stuff. You discuss politics kabhi ki? No, met too much. In fact, I bumped into him at the airport in a lounge. He was going somewhere, I was going somewhere else. So we bumped into each other. That was his first time when he had got that Rajya Sabha seat after becoming a Rajya Sabha MP. So we hardly discussed about politics. बहुत कम, मतलब literally nothing. I only met him in the parliament once in the central hall. My friendship with him is far beyond political thing. So the लड़ाई ideologies की, personal लड़ाई कुछ भी नहीं. So he is from Aam Aadmi Party, I am from BJP, but our friendship is far longer and far probably deeper and stronger than any political ideology. And hopefully it stays like that. Probably tomorrow if he criticizes me, he will only criticize me on my ideology, not on any other thing. And vice versa, if I have to ever criticize him, which I hope I don't have to,
because we shared some great moments together. We Both won of you were World Cup team में थे, साथ and में twice. twice, हाँ. 2007-11. Hopefully, we don't have to criticize each other. But if it ever has to happen, if it comes to that stage, we will only criticize each other on our ideologies, not personal. My relationship with Shahid Afridi, the lesser I talk, the better it is, because I don't think so. Some people don't grow. We find it funny, the kind like every time there's India Pakistan match, we have to Yeah, वही है, show that visual of- same TRP issue. कुछ बिकता नहीं है तो पुरानी चीज़ें बेचते रहो. आपको भी हंसी आती है कभी ये? मैं तो ये कहता हूँ 2011 को भी छोड़ो यार, बस थके नहीं कि MS धोनी का छक्का दिखा के. लेकिन एक पैटर्न देखा गया आप लोगों के टाइम में बहुत इंटेंस होता था, सहवाग, शोएब, यू, अफरीदी, अभी बहुत प्यार चल रहा है, बहुत why do you think it has changed? See, again, very individual. मुझे नहीं पता क्यों, why it has changed. I can't answer that question because only the current bunch of players can answer that. No, how can I answer that question? Ki what they think about X, Y, or Z. I'm sure they'll be as passionate as we were when we were playing for the country, because ultimately whether we were playing or they were playing, they're still representing the same tricolor. So I hope they still have the passion, and I'm sure they have this same passion. Probably it's just the way of dealing with things differently. I dealt with things much differently than probably someone else did. My own teammates used to say, "Why are you so intense?" Probably they were far more chilled out than I was, but that was my way of getting success, and I don't think I had to change. A lot of times it was told to me, just get a little relaxed, but no, I couldn't, because if I was getting success because of that, why need to change that? But yeah, this TRP thing, this me, Shahid Afridi, all this is useless, because कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव दिखाओ, क्या लड़ाई दिखाते रहते. अभी आई रिमेंबर जब मैंने ये श्रीलंका का फ्लैग पकड़ा आफ्टर दे वर अगेन स्टार्टेड सेइंग कि अगर पाकिस्तान जीतता तो आप पकड़ते. आई सेड दैट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और पाकिस्तान एंड श्रीलंका नॉट द सेम. एंड फॉर मी, आई थिंक इफ Sri-Lankan fans wanted me to hold the flag, I should respect the flag, and I was absolutely fine doing that. They were the deserving winners, and why shouldn't I?